नहीं, کیا کر رہے ہیں آپ؟ get ready, okay? انسان کو پتا نہیں زبردست اس کی پرورش ہوئی. چلبلے کی طرح بیٹھ چکے ہو. یہ اس لڑکی کا رشتہ دار ہے؟ بیٹی کمشنر خود چل کے میرے گھر موقع میں نہیں جانے لکھو میرا نام اس پہ لکھو. میں نہیں کر سکتا تھا. نہیں 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 جھوٹ بولا اس نے مجھ سے. جھوٹ نہیں بولا. اس نے زبان دی تھی مجھے. ہنسا پیچھے ہٹیں. How dare he? تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا. سائن کرو تم. اس کے نام کر چکا ہوں. انس کچھ نہیں کر سکتا, میرے اختیار میں نہیں ہے. پاگل سمجھا مجھے. انس تم ٹھیک ہو؟ ہیلو 15 راجا, ورنہ یہ لوگ اس کو مار دیں گے. تم کیوں ایسے سر پکڑ کے بیٹھے ہو؟ خون نہیں رک رہا. خون دبا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں پانی ڈالوں گی نا سر پہ. یہ انس کے سگے تھے. نفرت تھی ان کے انداز میں. کوئی جانی دشمن بھی نہیں کرتا. ذرا سے اس کو مار رہے تھے وہ. دراصل بات کچھ اور ہے. اس ٹاپک کو رہنے دیں. اسے سب پتا ہونا چاہیے. بس سے انس کے تایا کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائیوں کو ایک ہفتہ پہلے جب پتا فیکٹری پہنچ گئے نہ مار دیا. مشتبہ خود کو اپنا لینا چاہیے. ساری جزا جو ہے یہ انس کے نام کر دی. لین بھائی اس بات کو کبھی برداشت کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے. عجیب تماشا ہے. اب لوگ گھر میں گھسائے آپ کے رشتہ دار آ گئے گھر میں. سلیم ایسی بھی لڑکی کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تم نے گھسنے کیوں دیا؟ اس کی ضرورت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ مہمان ہے. ایک منٹ مرسلین یہ تم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے گھر کے اندر ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرسلین اس کو روکو. نکلو نہیں تو میں نکالوں گا باہر. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نکلیں یہاں سے فوراً. ہاں نہیں کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ ہینگ کو روکیے. دادا جان آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. پلیز بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. میرا اگر میں نے انسلٹ کی نا بہیو یور سیلف شایان. میرا گھر ہے ابر تک یاد رکھو گے. مرسلین صاحب, ہم نے تو آپ کو بہت عزت سے کرسی دے کر بٹھایا تھا. صدیقی صاحب آپ جی پلیز انس اور آنسر کے گھر میں آئے ہو. پلیز بیٹھیے 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 بیٹھیے. میں ابو جہاں مرضی بیٹھو 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 بیٹھو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جاؤ جاؤ کھانے پینے کا بندوبست کریں ہیں. ابو ان کو جانے مت دیجیے گا, بس 2 منٹ کی اجازت دیجیے. یار یہ والے برتن کیوں نکالے؟ نیا والا ٹی شرٹ نکالنا تھا. کہے تو بڑے غصے میں تھے. اب واپس کون سا وزیر اعظم آ گیا ہمارے گھر میں؟ بالکل دے دوں گا. اچھا یہ میں کر لوں گی. بالکل کمرے سے نہیں نکلنا جب تک مہمان نہیں آپ جاتے. جائیں. لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میرے انس کے لیے اس کا انتخاب. انس سے کانڈ. تم نے میرا گھر اس کے نام کر دیا. انس مارا اتنا مارا سب مرسلین بھائی کے نام لکھتے. جاؤ ان کی بیٹی ہوں. جی بیٹا تمہارا اس کے بعد پہلا سے کتنی محبت کرنا. اس کی امی سلپ ہو گیا تھا سیڑھیوں سے, تو پتہ نہیں کون جاننے والے نکلنا ہے ان کے. نو فارمیلٹیز. نہیں بیٹی سے ملنے کے لیے آئے ہیں. یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں بیٹا؟ لیکن آپ تو میرے گھر میں سے کچھ نہیں چھپانا ہے. ہم نے سن کی شادی کر لی. سگے بھائی کو چھوڑ دو, لیکن اب پتا چلا انس کا پیر سلپ نہیں ہوا تھا, اور نظروں سے تمہیں دیکھتا تھا کہ وہ سر جھکا کے چلتا ہے. اس سے پتہ کیا کہا؟ اس نے مجھے اپنا گھر دے دیا. کسی رشتے میں بننے کے باوجود بھی تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں. تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گی. تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بالکل ہی الگ ہے. تم چلو, ہم ابھی جا کے اپنے ابو کو بتاتی ہوں. اس کے تایا نے اسے مارا تھا. یار اس کے تایا کا ایگو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک کال پہ کہ مجھے سب آوازیں آ رہی تھی. شان لوگوں نے اس کو بہت مارا. اس کے پاس صرف ایک گھر ہی تھا. بہت مشکل سے ملا تھا اس سے. پھر بھی انسا سے وہ گھر واپس نہیں لوں گا. میرے بھائی کو دیکھو. کمپیریزن نہیں ہوتا انسا. بھائی کو تم انس سے کمپیئر کر رہی ہو. خوشی اور فخر کی بات ہے انسا. اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا. مجھے اتنا زیادہ جانتا ہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی. میرے سگے بھائی نے میرے نام کر دیا. ہاں تو سگے شوہر کی بات کرو.
लगे शौहर पे फोकस करो, जान से प्यारा। वो वाला है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी में था। नाजरीन, बस तेरा साथ हो कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर छत के नीचे एक जंग है और हर खामोशी एक तूफान छुपाए बैठी है। एपिसोड 18 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं था, वो अंसा की पूरी दुनिया का टूटना था। भाई अर्फ ने फोन पर रिश्ता तोड़ दिया। अल्फाज इतने तल्ख थे कि सुनने वाला भी कांप जाए। शाजिया ने किचन से निकाला अनस को तेज बुखार, और शियून ने नया मंसूबा बना लिया, आग से आग। मगर इस सब में एक चीज नुमाया थी, अनस और अंसा का एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। अनस ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, सच बताऊंगा, और अंसा ने कहा, बस तुम वदा करो, साथ दोगे। एपिसोड 19 में सबसे बड़ा सवाल यह है, शियून की वो आग क्या होगी? और जलाल कौन है जिससे मुरसलीन मिलने गया? अनस मुज्तब, इस कहानी का वो किरदार जिसने सारी जिंदगी अकेले लड़ाई लड़ी। एपिसोड 17 में अनस ने दादा की किस्म खाई, शियून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह किस्म उसके दिल पर पत्थर की तरह रखी गई। मगर अनस की खामोशी कमजोरी नहीं, ये इसकी मोहब्बत है दादा से। एपिसोड 18 में अनस को तेज बुखार हुआ। अंसा ने दवा लगाई, पानी पिलाया। ये छोटे छोटे लम्हे हैं मगर उनमें एक गहरा रिश्ता पक रहा है। एपिसोड 19 में अनस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, दादा की किस्म और अंसा का इंसाफ, दोनों में से क्या चुनेगा? आतिफ सिद्दीकी ने वदा किया था कि साइबर क्राइम अफसर से मिलवाएंगे। जब वो मुलाकात होगी, अनस क्या करेगा? अंसा, इस ड्रामे की वो रूह जो हर जुल्म के बावजूद टूटी नहीं। एपिसोड 18 में अंसा का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो था जब भाई अफ ने कहा, आज के बाद जिंदगी और मौत में कोई रिश्ता नहीं। ये अल्फाज खंजर की तरह लगे। अंसा रोई, मगर फिर उठी और कहा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शख्स को ढूंढना। एपिसोड 19 में अंसा का गुस्सा और उसका दर्द दोनों मजीद बढ़ेंगे। शाजिया ने किचन बंद किया मगर अंसा ने दादा के कमरे का रुख किया। ये अंसा की समझदारी है, वो जानती है कि इस घर में एक ही अपना है, दादा। मगर सबसे बड़ा खतरा, शियून का नया मंसूबा। आग से आग, इसका क्या मतलब है? कहीं अंसा की इज्जत पर दोबारा हमला तो नहीं होगा? दादा, इस घर की वो आवाज जो सबको जोड़े रखती है मगर खुद टूट रही है। एपिसोड 17 में दादा ने अनस से किस्म ली, मामला घर में दफन करो। ये फैसला गलत था मगर दादा का इरादा खानदान बचाना था। एपिसोड 18 में पेओपो को रुखसत करते हुए दादा का दिल भारी था, पहली बार सुकून से जा रही हूं। एपिसोड 19 में दादा की सेहत एक अहम मौजू होगा। फिजियोथेरापिस्ट का नंबर कागज पर लिखा है, अनस ने याद दिलाया। क्या दादा की सेहत बिगड़ेगी? और जब दादा को पता चलेगा कि शाजिया ने अंसा को किचन से निकाला, तो उनका रद्दे अमल क्या होगा? दादा इस घर का वाहिद इंसाफ हैं, मगर कब तक? मुरसलीन और शियून, इस घर के वो किरदार जो अमन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एपिसोड 18 में मुरसलीन जलाल के पास गया। ये जलाल कौन है? कोई वकील? कोई बदमाश? कोई पुराना दुश्मन जिसे मुरसलीन ने इस्तेमाल करना चाहा? शियून ने कहा, आग सिर्फ माचिस से नहीं लगती। ये जुमला बताता है कि शियून अब कोई सोची समझी चाल चलेगा। शायद अंसा के खिलाफ कोई नया झूठ, अनस को बदनाम करने की कोशिश। एपिसोड 19 में मुरसलीन की जलाल से मुलाकात का नतीजा सामने आएगा और शियून की आग भड़केगी। मगर इस बार आतिफ सिद्दीकी मौजूद हैं और वो डिप्टी कमिश्नर हैं। शहरीन और फहाम, इस कहानी का वो रोमांटिक रंग जो संजीदगी में मुस्कुराहट लाता है। एपिसोड 18 में फहाम ने कहा, चश्मे के साथ चाय लगती हो, बगैर चश्मे के काफी। और मुझे दोनों की लत लगने वाली है। ये जुमला इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत लाइन थी। एपिसोड 19 में फहाम और शहरीन की मुलाकात होगी। शहरीन ने कहा था, मेरे अबू मिलेंगे तो ठीक कर देंगे। क्या फहाम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत करेगा? ईशा, अंसा की सहेली, अगले एपिसोड में दोबारा आ सकती है। अंसा का भाई अर्फ जब रिश्ता तोड़ चुका है तो ईशा और उसके अबू ही अंसा की असल ताकत है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती वही असल कहानी है। पहला राज, वो वीडियो जिससे ये सारा फसाद शुरू हुआ। आखिर इस वीडियो को किसने बनाया? कौन था वो शख्स? अंसा ढूंढ रही है, मगर क्या वो इसी घर में है? दूसरा राज, मुरसलीन और मुज्तब का पुराना झगड़ा। एपिसोड 17 में पेओपो ने बताया कि मुरसलीन ने मुज्तब को कभी कबूल नहीं किया। क्यों? क्या कोई पुराना राज है? तीसरा राज, दादा की वो गलती। उन्होंने खुद कहा, मैंने मुज्तब के साथ जुल्म किया। क्या ये जुल्म सिर्फ शादी का मामला था? कुछ और भी छुपा है?
चौथा राज, अनस का मुस्तकबिल। घर अंसा के नाम है, नौकरी नहीं, पैसे नहीं। वालिमा का खर्च कहाँ से आएगा? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? नाजरीन, बस तेरा साथ हो कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर छत के नीचे एक जंग है और हर खामोशी एक तूफान छुपाए बैठी है। एपिसोड 18 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं था, वो अंसा की पूरी दुनिया का टूटना था। भाई अर्फ ने फोन पर रिश्ता तोड़ दिया। अल्फाज इतने तल्ख थे कि सुनने वाला भी कांप जाए। शाजिया ने किचन से निकाला अनस को तेज बुखार और शियून ने नया मंसूबा बना लिया, आग से आग। मगर इस सब में एक चीज नुमाया थी, अनस और अंसा का एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। अनस ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, सच बताऊंगा, और अंसा ने कहा, बस तुम वदा करो साथ दोगे। एपिसोड 19 में सबसे बड़ा सवाल यह है, शियून की आग क्या होगी और जलाल कौन है जिससे मुरसलीन मिलने गया? अनस मुज्तब, इस कहानी का वो किरदार जिसने सारी जिंदगी अकेले लड़ाई लड़ी। एपिसोड 17 में अनस ने दादा की किस्म खाई, शियून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह किस्म उसके दिल पर पत्थर की तरह रखी गई। मगर अनस की खामोशी कमजोरी नहीं, ये इसकी मोहब्बत है दादा से। एपिसोड 18 में अनस को तेज बुखार हुआ। अंसा ने दवा लगाई, पानी पिलाया। ये छोटे छोटे लम्हे हैं मगर उनमें एक गहरा रिश्ता पक रहा है। एपिसोड 19 में अनस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, दादा की किस्म और अंसा का इंसाफ, दोनों में से क्या चनेगा? आतिफ सिद्दीकी ने वदा किया था कि साइबर क्राइम अफसर से मिलवाएंगे। जब वो मुलाकात होगी, अनस क्या करेगा? अंसा, इस ड्रामे की वो रूह जो हर जुल्म के बावजूद टूटी नहीं। एपिसोड 18 में अंसा का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो था जब भाई अफ ने कहा, आज के बाद जिंदगी और मौत में कोई रिश्ता नहीं। ये अल्फाज खंजर की तरह लगे। अंसा रोई मगर फिर उठी और कहा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शख्स को ढूंढना। एपिसोड 19 में अंसा का गुस्सा और उसका दर्द दोनों मजीद बढ़ेंगे। शाजिया ने किचन बंद किया मगर अंसा ने दादा के कमरे का रुख किया। ये अंसा की समझदारी है, वो जानती है कि इस घर में एक ही अपना है, दादा। मगर सबसे बड़ा खतरा, शियून का नया मंसूबा। आग से आग, इसका क्या मतलब है? कहीं अंसा की इज्जत पर दोबारा हमला तो नहीं होगा? दादा, इस घर की वो आवाज जो सबको जोड़े रखती है मगर खुद टूट रही है। एपिसोड 17 में दादा ने अनस से किस्म ली, मामला घर में दफन करो। ये फैसला गलत था मगर दादा का इरादा खानदान बचाना था। एपिसोड 18 में पेओपो को रुखसत करते हुए दादा का दिल भारी था, पहली बार सुकून से जा रही हूं। एपिसोड 19 में दादा की सेहत एक अहम मौजू होगा। फिजियोथेरापिस्ट का नंबर कागज पर लिखा है, अनस ने याद दिलाया। क्या दादा की सेहत बिगड़ेगी? और जब दादा को पता चलेगा कि शाजिया ने अंसा को किचन से निकाला तो उनका रद्दे अमल क्या होगा? दादा इस घर का वाहिद इंसाफ हैं, मगर कब तक? मुरसलीन और शियून, इस घर के वो किरदार जो अमन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एपिसोड 18 में मुरसलीन जलाल के पास गया। ये जलाल कौन है? कोई वकील, कोई बदमाश, कोई पुराना दुश्मन जिसे मुरसलीन ने इस्तेमाल करना चाहा। शियून ने कहा, आग सिर्फ माचिस से नहीं लगती। ये जुमला बताता है कि शियून अब कोई सोची समझी चाल चलेगा। शायद अंसा के खिलाफ कोई नया झूठ, अनस को बदनाम करने की कोशिश। एपिसोड 19 में मुरसलीन की जलाल से मुलाकात का नतीजा सामने आएगा और शियून की आग भड़केगी। मगर इस बार आतिफ सिद्दीकी मौजूद हैं और वो डिप्टी कमिश्नर हैं। शहरीन और फहाम, इस कहानी का वो रोमांटिक रंग जो संजीदगी में मुस्कुराहट लाता है। एपिसोड 18 में फहाम ने कहा, चश्मे के साथ चाय लगती हो, बगैर चश्मे के काफी, और मुझे दोनों की लत लगने वाली है। ये जुमला इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत लाइन थी। एपिसोड 19 में फहाम और शहरीन की मुलाकात होगी।
شہرین نے کہا تھا میرے ابو ملیں گے تو ٹھیک کر دیں گے، کیا فہام اس رشتے کو آگے بڑھانے کی ہمت کرے گا؟ عیشا، انسا کی سہیلی، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ انسا کا بھائی عرف جب رشتہ توڑ چکا ہے تو عیشا اور اس کے ابو ہی انسا کی اصل طاقت ہے۔ اس ڈرامے میں جو چیز سطح پر نہیں دکھتی وہی اصل کہانی ہے۔ پہلا راز، وہ ویڈیو جس سے یہ سارا فساد شروع ہوا۔ آخر اس ویڈیو کو کس نے بنایا؟ کون تھا وہ شخص؟ انسا ڈھونڈ رہی ہے، مگر کیا وہ اسی گھر میں ہے؟ دوسرا راز، مرسلین اور مجتب کا پرانا جھگڑا۔ ایپیسوڈ 17 میں پیوپو نے بتایا کہ مرسلین نے مجتب کو کبھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا کوئی پرانا راز ہے؟ تیسرا راز، دادا کی وہ غلطی۔ انہوں نے خود کہا میں نے مجتب کے ساتھ ظلم کیا یہ ظلم صرف شادی کا معاملہ تھا؟ کچھ اور بھی چھپا ہے؟ چوتھا راز، انس کا مستقبل۔ گھر انسا کے نام ہے، نوکری نہیں، پیسے نہیں، والیمہ کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ اب وہ لمحہ جس کا انتظار تھا۔ ایپیسوڈ 19 میں سب سے پہلے شیون کی آگ سامنے آئے گی۔ وہ انسا کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنائے گا، شاید گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے جس سے انسا بدنام ہو۔ دوسرا، مرسلین جلال سے مل کر واپس آئے گا اور کوئی نیا قدم اٹھائے گا انس کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ تیسرا، دادا کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اور جب انس اور انسا ان کی دیکھ بھال کریں گے، شازیہ اور مرسلین ایک بار پھر بے نقاب ہوں گے۔ میجر ٹوئسٹ، وہ شخص جس نے ویڈیو بنائی وہ شیون کا دوست ہے، اور شیون جانتا تھا کہ انسا اس ویڈیو میں ہے۔ یہ سب پہلے سے سوچی سمجھی سازش تھی۔ جب یہ سچ سامنے آئے گا، انس کا رد عمل سب کچھ بدل دے گا، اور اسکرین پر صرف ایک سوال ہوگا، کیا جو رشتہ ظلم سے شروع ہوا وہ محبت سے نکھر سکتا ہے؟ ناظرین، بس تیرا ساتھ ہو کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر رشتہ ایک نئے امتحان میں ہے۔ ہر چھت کے نیچے ایک جنگ ہے، اور ہر خاموشی ایک طوفان چھپائے بیٹھی ہے۔ ایپیسوڈ 18 میں جو کچھ ہوا وہ صرف گھریلو جھگڑا نہیں تھا، وہ انسا کی پوری دنیا کا ٹوٹنا تھا۔ بھائی عرف نے فون پر رشتہ توڑ دیا۔ الفاظ اتنے تلخ تھے کہ سننے والا بھی کانپ جائے۔ شازیہ نے کچن سے نکالا انس کو تیز بخار، اور شیون نے نیا منصوبہ بنا لیا، آگ سے آگ۔ مگر اس سب میں ایک چیز نمایاں تھی، انس اور انسا کا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنا۔ انس نے کہا میں تمہارے بھائی کے پاس جاؤں گا، سچ بتاؤں گا، اور انسا نے کہا بس تم وعدہ کرو ساتھ دو گے۔ ایپیسوڈ 19 میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، شیون کی آگ کیا ہوگی؟ اور جلال کون ہے جس سے مرسلین ملنے گیا؟ انس مجتب، اس کہانی کا وہ کردار جس نے ساری زندگی اکیلے لڑائی لڑی۔ ایپیسوڈ 17 میں انس نے دادا کی قسم کھائی، شیون کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ یہ قسم اس کے دل پر پتھر کی طرح رکھی گئی۔ مگر انس کی خاموشی کمزوری نہیں، یہ اس کی محبت ہے دادا سے۔ ایپیسوڈ 18 میں انس کو تیز بخار ہوا۔ انسا نے دوا لگائی، پانی پلایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں مگر ان میں ایک گہرا رشتہ پک رہا ہے۔ ایپیسوڈ 19 میں انس کے سامنے سب سے بڑا سوال ہوگا، دادا کی قسم اور انسا کا انصاف، دونوں میں سے کیا چنے گا؟ عاطف صدیقی نے وعدہ کیا تھا کہ سائبر کرائم افسر سے ملوائیں گے۔ جب وہ ملاقات ہوگی، انس کیا کرے گا؟ انسا، اس ڈرامے کی وہ روح جو ہر ظلم کے باوجود ٹوٹی نہیں۔ ایپیسوڈ 18 میں انسا کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب بھائی عرف نے کہا آج کے بعد زندگی اور موت میں کوئی رشتہ نہیں۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح لگے۔ انسا روئی، مگر پھر اٹھی اور کہا میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس شخص کو ڈھونڈنا۔ ایپیسوڈ 19 میں انسا کا غصہ اور اس کا درد دونوں مزید بڑھیں گے۔ شازیہ نے کچن بند کیا مگر انسا نے دادا کے کمرے کا رخ کیا۔ یہ انسا کی سمجھداری ہے، وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں ایک ہی اپنا ہے، دادا۔ مگر سب سے بڑا خطرہ، شیون کا نیا منصوبہ۔ آگ سے آگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں انسا کی عزت پر دوبارہ حملہ تو نہیں ہوگا؟ دادا، اس گھر کی وہ آواز جو سب کو جوڑے رکھتی ہے مگر خود ٹوٹ رہی ہے۔ ایپیسوڈ 17 میں دادا نے انس سے قسم لی، معاملہ گھر میں دفن کرو۔ یہ فیصلہ غلط تھا مگر دادا کا ارادہ خاندان بچانا تھا۔ ایپیسوڈ 18 میں پیوپو کو رخصت کرتے ہوئے دادا کا دل بھاری تھا، پہلی بار سکون سے جا رہی ہوں۔ ایپیسوڈ 19 میں دادا کی صحت ایک اہم موضوع ہوگا۔ فزیو تھراپسٹ کا نمبر کاغذ پر لکھا ہے، انس نے یاد دلایا۔ کیا دادا کی صحت بگڑے گی؟ اور جب دادا کو پتا چلے گا کہ شازیہ نے انسا کو کچن سے نکالا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دادا اس گھر کا واحد انصاف ہیں، مگر کب تک؟ مرسلین اور شیون، اس گھر کے وہ کردار جو امن کو برداشت نہیں کر سکتے۔
एपिसोड 18 में मुरसलीन जलाल के पास गया। ये जलाल कौन है? कोई वकील, कोई बदमाश, कोई पुराना दुश्मन जिसे मुरसलीन ने इस्तेमाल करना चाहा। शियून ने कहा, आग सिर्फ माचिस से नहीं लगती। ये जुमला बताता है कि शियून अब कोई सोची समझी चाल चलेगा। शायद अंसा के खिलाफ कोई नया झूठ, अनस को बदनाम करने की कोशिश। एपिसोड 19 में मुरसलीन की जलाल से मुलाकात का नतीजा सामने आएगा और शियून की आग भड़केगी, मगर इस बार आतिफ सिद्दीकी मौजूद हैं और वो डिप्टी कमिश्नर हैं। शहरीन और फहाम, इस कहानी का वो रोमांटिक रंग जो संजीदगी में मुस्कुराहट लाता है। एपिसोड 18 में फहाम ने कहा, चश्मे के साथ चाय लगती हो बगैर चश्मे के काफी, और मुझे दोनों की लत लगने वाली है। ये जुमला इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत लाइन थी। एपिसोड 19 में फहाम और शहरीन की मुलाकात होगी। शहरीन ने कहा था, मेरे अबू मिलेंगे तो ठीक कर देंगे। क्या फहाम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत करेगा? ईशा, अंसा की सहेली, अगले एपिसोड में दोबारा आ सकती है। अंसा का भाई अर्फ जब रिश्ता तोड़ चुका है तो ईशा और उसके अबू ही अंसा की असल ताकत है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती वही असल कहानी है। पहला राज, वो वीडियो जिससे ये सारा फसाद शुरू हुआ। आखिर इस वीडियो को किसने बनाया? कौन था वो शख्स? अंसा ढूंढ रही है, मगर क्या वो इसी घर में है? दूसरा राज, मुरसलीन और मुज्तब का पुराना झगड़ा। एपिसोड 17 में पेओपो ने बताया कि मुरसलीन ने मुज्तब को कभी कबूल नहीं किया। क्यों? क्या कोई पुराना राज है? तीसरा राज, दादा की वो गलती। उन्होंने खुद कहा, मैंने मुज्तब के साथ जुल्म किया। क्या ये जुल्म सिर्फ शादी का मामला था? कुछ और भी छुपा है? चौथा राज, अनस का मुस्तकबिल। घर अंसा के नाम है, नौकरी नहीं, पैसे नहीं। वालिमा का खर्च कहां से आएगा? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? नाजरीन, बस तेरा साथ हो कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान में है। हर छत के नीचे एक जंग है और हर खामोशी एक तूफान छुपाए बैठी है। एपिसोड 18 में जो कुछ हुआ वो सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं था, वो अंसा की पूरी दुनिया का टूटना था। भाई अर्फ ने फोन पर रिश्ता तोड़ दिया। अल्फाज इतने तल्ख थे कि सुनने वाला भी कांप जाए। शाजिया ने किचन से निकाला अनस को तेज बुखार और शियून ने नया मंसूबा बना लिया, आग से आग। मगर इस सब में एक चीज नुमाया थी, अनस और अंसा का एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। अनस ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, सच बताऊंगा, और अंसा ने कहा, बस तुम वदा करो साथ दोगे। एपिसोड 19 में सबसे बड़ा सवाल यह है, शियून की वो आग क्या होगी और जलाल कौन है जिससे मुरसलीन मिलने गया? अनस मुज्तब, इस कहानी का वो किरदार जिसने सारी जिंदगी अकेले लड़ाई लड़ी। एपिसोड 17 में अनस ने दादा की किस्म खाई, शियून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये किस्म उसके दिल पर पत्थर की तरह रखी गई। मगर अनस की खामोशी कमजोरी नहीं, ये इसकी मोहब्बत है दादा से। एपिसोड 18 में अनस को तेज बुखार हुआ। अंसा ने दवा लगाई, पानी पिलाया। ये छोटे छोटे लम्हे हैं मगर उनमें एक गहरा रिश्ता पक रहा है। एपिसोड 19 में अनस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, दादा की किस्म और अंसा का इंसाफ, दोनों में से क्या चुनेगा? आतिफ सिद्दीकी ने वदा किया था कि साइबर क्राइम अफसर से मिलवाएंगे। जब वो मुलाकात होगी, अनस क्या करेगा? अनस मुज्तब, इस कहानी का वो किरदार जिसने सारी जिंदगी अकेले लड़ाई लड़ी। एपिसोड 17 में अनस ने दादा की किस्म खाई, शियून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह किस्म उसके दिल पर पत्थर की तरह रखी गई। मगर अनस की खामोशी कमजोरी नहीं, ये इसकी मोहब्बत है दादा से। एपिसोड 18 में अनस को तेज बुखार हुआ। अंसा ने दवा लगाई, पानी पिलाया। ये छोटे छोटे लम्हे हैं मगर उनमें एक गहरा रिश्ता पक रहा है। एपिसोड 19 में अनस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, दादा की किस्म और अंसा का इंसाफ, दोनों में से क्या चुनेगा?
आतिफ सिद्दीकी ने वदा किया था कि साइबर क्राइम अफसर से मिलवाएंगे। जब वो मुलाकात होगी, अनस क्या करेगा? अंसा, इस ड्रामे की वो रूह जो हर जुल्म के बावजूद टूटी नहीं। एपिसोड 18 में अंसा का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो था जब भाई अफ ने कहा, आज के बाद जिंदगी और मौत में कोई रिश्ता नहीं। ये अल्फाज खंजर की तरह लगे। अंसा रोई, मगर फिर उठी और कहा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस शख्स को ढूंढना। एपिसोड 19 में अंसा का गुस्सा और उसका दर्द दोनों मजीद बढ़ेंगे। शाजिया ने किचन बंद किया, मगर अंसा ने दादा के कमरे का रुख किया। ये अंसा की समझदारी है, वो जानती है कि इस घर में एक ही अपना है, दादा। मगर सबसे बड़ा खतरा, शियून का नया मंसूबा। आग से आग, इसका क्या मतलब है? कहीं अंसा की इज्जत पर दोबारा हमला तो नहीं होगा? दादा, इस घर की वो आवाज जो सबको जोड़े रखती है मगर खुद टूट रही है। एपिसोड 17 में दादा ने अनस से किस्म ली, मामला घर में दफन करो। ये फैसला गलत था, मगर दादा का इरादा खानदान बचाना था। एपिसोड 18 में पेओपो को रुखसत करते हुए दादा का दिल भारी था, पहली बार सुकून से जा रही हूं। एपिसोड 19 में दादा की सेहत एक अहम मौजू होगा। फिजियोथेरापिस्ट का नंबर कागज पर लिखा है, अनस ने याद दिलाया। क्या दादा की सेहत बिगड़ेगी? और जब दादा को पता चलेगा कि शाजिया ने अंसा को किचन से निकाला, तो उनका रद्दे अमल क्या होगा? दादा इस घर का वाहिद इंसाफ हैं, मगर कब तक? मुरसलीन और शियून, इस घर के वो किरदार जो अमन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एपिसोड 18 में मुरसलीन जलाल के पास गया। ये जलाल कौन है? कोई वकील? कोई बदमाश? कोई पुराना दुश्मन जिसे मुरसलीन ने इस्तेमाल करना चाहा? शियून ने कहा, आग सिर्फ माचिस से नहीं लगती। ये जुमला बताता है कि शियून अब कोई सोची समझी चाल चलेगा। शायद अंसा के खिलाफ कोई नया झूठ, अनस को बदनाम करने की कोशिश। एपिसोड 19 में मुरसलीन की जलाल से मुलाकात का नतीजा सामने आएगा और शियून की आग भड़केगी, मगर इस बार आतिफ सिद्दीकी मौजूद हैं और वो डिप्टी कमिश्नर हैं। शहरीन और फहाम, इस कहानी का वो रोमांटिक रंग जो संजीदगी में मुस्कुराहट लाता है। एपिसोड 18 में फहाम ने कहा, चश्मे के साथ चाय लगती हो, बगैर चश्मे के काफी, और मुझे दोनों की लत लगने वाली है। ये जुमला इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत लाइन थी। एपिसोड 19 में फहाम और शहरीन की मुलाकात होगी। शहरीन ने कहा था, मेरे अबू मिलेंगे तो ठीक कर देंगे। क्या फहाम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत करेगा? ईशा, अंसा की सहेली, अगले एपिसोड में दोबारा आ सकती है। अंसा का भाई अर्फ जब रिश्ता तोड़ चुका है तो ईशा और उसके अबू ही अंसा की असल ताकत है। इस ड्रामे में जो चीज सतह पर नहीं दुखती, वही असल कहानी है। पहला राज, वो वीडियो जिससे ये सारा फसाद शुरू हुआ। आखिर इस वीडियो को किसने बनाया? कौन था वो शख्स? अंसा ढूंढ रही है, मगर क्या वो इसी घर में है? दूसरा राज, मुरसलीन और मुज्तब का पुराना झगड़ा। एपिसोड 17 में पेओपो ने बताया कि मुरसलीन ने मुज्तब को कभी कबूल नहीं किया। क्यों? क्या कोई पुराना राज है? तीसरा राज, दादा की वो गलती। उन्होंने खुद कहा, मैंने मुज्तब के साथ जुल्म किया। क्या ये जुल्म सिर्फ शादी का मामला था? कुछ और भी छुपा है? चौथा राज, अनस का मुस्तकबिल। घर अंसा के नाम है, नौकरी नहीं, पैसे नहीं। वालिमा का खर्च कहां से आएगा? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है
और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा। और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे, शाजिया और मुरसलीन एक बार फिर बेनकाब होंगे। मेजर ट्विस्ट, वो शख्स जिसने वीडियो बनाई वो शियून का दोस्त है और शियून जानता था कि अंसा इस वीडियो में है। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। जब ये सच सामने आएगा, अनस का रद्दे अमल सब कुछ बदल देगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल होगा, क्या जो रिश्ता जुल्म से शुरू हुआ वो मोहब्बत से निखर सकता है? अब वो लम्हा जिसका इंतजार था। एपिसोड 19 में सबसे पहले शियून की आग सामने आएगी। वो अंसा के खिलाफ कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे अंसा बदनाम हो। दूसरा, मुरसलीन जलाल से मिलकर वापस आएगा और कोई नया कदम उठाएगा अनस को घर से निकालने के लिए। तीसरा, दादा की तबीयत बिगड़ सकती है और जब अनस और अंसा उनकी देखभाल करेंगे,
شازیہ اور مرسلین ایک بار پھر بے نقاب ہوں گے۔ میجر ٹوئسٹ، وہ شخص جس نے ویڈیو بنائی وہ شیون کا دوست ہے، اور شیون جانتا تھا کہ انسا اس ویڈیو میں ہے۔ یہ سب پہلے سے سوچی سمجھی سازش تھی۔ جب یہ سچ سامنے آئے گا، انس کا رد عمل سب کچھ بدل دے گا، اور اسکرین پر صرف ایک سوال ہوگا، کیا جو رشتہ ظلم سے شروع ہوا وہ محبت سے نکھر سکتا ہے؟ اب وہ لمحہ جس کا انتظار تھا۔ ایپیسوڈ 19 میں سب سے پہلے شیون کی آگ سامنے آئے گی۔ وہ انسا کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنائے گا، شاید گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے جس سے انسا بدنام ہو۔ دوسرا، مرسلین جلال سے مل کر واپس آئے گا اور کوئی نیا قدم اٹھائے گا انس کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ تیسرا، دادا کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اور جب انس اور انسا ان کی دیکھ بھال کریں گے، شازیہ اور مرسلین ایک بار پھر بے نقاب ہوں گے۔ میجر ٹوئسٹ، وہ شخص جس نے ویڈیو بنائی وہ شیون کا دوست ہے، اور شیون جانتا تھا کہ انسا اس ویڈیو میں ہے۔ یہ سب پہلے سے سوچی سمجھی سازش تھی۔ جب یہ سچ سامنے آئے گا، انس کا رد عمل سب کچھ بدل دے گا، اور اسکرین پر صرف ایک سوال ہوگا، کیا جو رشتہ